Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer, third year, subject Theory of Fashion 3, subject code CD 303, Theory and Tutorial, unit number 3, Career in Fashion, part 2, 3.1, subtopic Fashion Expert, Designer, Career Planning Skills. आज हमारी इसकी मुख्य की कंटेंट्स हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करियर. Second is meaning and definition of planning. Third is meaning and definition of skill. Fourth is career planning. Fifth is evaluating career goal, in which we're going to learn the points to be considered for effective selection of career. Sixth is in-depth job study. Seventh is career path, in which we're going to learn the meaning of job and types of job. And eighth is planning a career in fashion, and the subtopics are the personal qualities and skill, self-evaluation, and looking for the opportunities. Meaning and definition of career. Meaning: an occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. And the another meaning is the career is an individual's metaphorical journey through learning, work, and other aspect of life. Definition: course or progress through life or a distinct portion of life. Now we're going to read in Hindi. अर्थ: किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवधि और प्रगति के अवसरों के लिए एक व्यवसाय किया जाता है. शिक्षा, कार्य और जीवन के अन्य पहलुओं के माध्यम से करियर एक व्यक्ति की रूपक यात्रा होती है. परिभाषा: जीवन के माध्यम से पाठ्यक्रम या प्रगति या जीवन का एक अलग हिस्सा. अब हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग को पढ़ेंगे. प्लानिंग हम पूर्व में भी वाटर प्लानिंग में पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ पर पुनः इसको रिवाइज करेंगे. मीनिंग: प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फोरमोस्ट अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल. इट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspects that requires conceptual skills. Definition: planning is nothing but thinking before the action take place. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. योजना और योजना की परिभाषा का अर्थ: योजना एक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है. ये वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली पहली गतिविधि है. इसमें एक योजना का निर्माण और रखरखाव शामिल होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक पहलू जिसमें वैचारिक कौशल की आवश्यकता होती है. परिभाषा: कार्रवाई करने से पहले योजना बनाना कुछ भी नहीं है. ये हमें भविष्य में झांकने में मदद करता है और परिस्थितियों से निपटने के तरीके के बारे में पहले से तय करता है, जिसका हम भविष्य में सामना करने जा रहे हैं. इसमें तार्किक सोच और तर्कसंगत निर्णय लेना शामिल होता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्किल. मीनिंग: द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल एक्सपर्टाइज. The ability to use one's knowledge effectively and readily in execution or performance. कुछ अच्छा करने की क्षमता, विशेषज्ञता.
निष्पादन या प्रदर्शन में प्रभावी रूप से और आसानी से किसी के ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। Dexterity or coordination, especially in the execution of learned physical task. A learned power of doing something competently. विशेष रूप से सीखा शारीरिक कार्यों के निष्पादन में निपुणता या समन्वय होना, या सक्षम रूप से कुछ करने की एक सीखी हुई शक्ति। Definition of skill is great ability or proficiency and expertness that comes from training, practice, etc. महान क्षमता या प्रवीणता और विशेषज्ञता जो प्रशिक्षण, अभ्यास आदि से आती है। करियर प्लानिंग यानी कि भविष्य की योजना। भविष्य की योजना की हम परिभाषा पढ़ेंगे। According to Schermerhorn, Hunt and Osborne, career planning is a process of systematically matching career goals and individual capabilities with opportunities for their fulfillment. करियर नियोजन उनकी पूर्ति के अवसरों के साथ करियर के लक्ष्यों और व्यक्तिगत क्षमताओं के मिलान की एक प्रक्रिया है। Career planning is a deliberated process of becoming aware of self-opportunities, constraints, choices, and consequences, identifying career-related goals and career path or programming work, education, and related developmental experiences to provide the direction, timing, and sequence of steps to attain a specific कैरियर गोल। करियर योजना स्वयं अवसरों, बाधाओं, विकल्पों और परिणामों के बारे में जागरूक बनने की एक जानबूझ कर प्रक्रिया है। पहचान संबंधित लक्ष्यों और करियर पाथिंग या प्रोग्रामिंग कार्य, शिक्षा और संबंधित विकास संबंधों, अनुभवों को दिशा, समय प्रदान करने के लिए और एक विशिष्ट कैरियर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदमों का क्रम होता है। Planning a career is an ongoing process. Career planning is an ongoing process through which an individual sets a career goal and identifies the means to achieve them. The process by which individuals plan their life's work is referred to as career planning. Career planning process is purely preparing oneself for the future career. It requires a well-equipped, good competency, skills, and more structured way of planning and performing. करियर योजना एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति करियर के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के साधनों की पहचान करता है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति अपने जीवन के कार्य की योजना बनाते हैं उसे करियर नियोजन कहा जाता है। करियर योजना प्रक्रिया विशुद्ध रूप से भविष्य के करियर के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। इसके लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित, अच्छी योग्यता, कौशल और योजना और प्रदर्शन के अधिक संरचित तरीकों की आवश्यकता होती है। Career planning helps the individuals have the knowledge of various career opportunities, his priorities, etc. करियर प्लानिंग से व्यक्तियों को करियर के विभिन्न अवसरों, उनकी प्राथमिकताओं आदि का ज्ञान होता है। It helps him select the career which is suitable to his lifestyle, preference, family environment, scope for self-development. यह उसे करियर का चयन करने में मदद करता है जो उसकी जीवन शैली, वरीयता, पारिवारिक वातावरण
आत्मविश्वास या विकास की गुंजाइश के लिए उपयुक्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि करियर प्लानिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करियर प्लानिंग, यानी करियर योजना का उद्देश्य क्या है। The main purpose of career planning is to have a career development and enhancing one's future. It motivates the individuals to find and collect the information and data required, which helps us to synthesize, gain competencies, decision making, goal setting, taking action, and it also help you in maintaining a good work life. करियर प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य करियर का विकास और अपने भविष्य को बढ़ाना होता है। ये आवश्यक जानकारी और डेटा को खोजने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ सारी जानकारियों को भी एकत्रित किया जाता है और जो हमें इसमें मदद करता है, जैसे कि संश्लेषण करें, योग्यता प्राप्त करें, निर्णय लेना, लक्ष्य की स्थापना करना, कार्यवाही करना। ये आपको एक अच्छा कार्य जीवन निर्धारण लेने में भी मदद करता है। फीचर्स ऑफ करियर प्लानिंग। करियर योजना की विशेषताएं। करियर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, यानी करियर योजना एक सतत प्रक्रिया है। इट हेल्प्स यू ग्रो एंड एक्सपैंड द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट मैच वेरियस करियर रोल्स। ये आपको आवश्यक कौशल और क्षमताओं को विकसित करने और विस्तार करने में मदद करता है जो विभिन्न करियर भूमिकाओं से मेल खाते हैं। इट बिल्ड्स अप वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्ट्रॉन्गर एट वर्क। ये काम से संबंधित गतिविधियों को मजबूत बनाता है। करियर प्लानिंग क्लैरिफाइज योर रिगार्डिंग लाइफ, करियर एंड इंटरेस्ट। करियर योजना आपको जीवन, करियर और हितों के बारे में स्पष्ट करती है। Guides you in your professional front as they directly related to career goals। अपने पेशेवर मोर्चे पर आपका मार्गदर्शन करता है क्योंकि ये सीधा करियर के लक्ष्यों से संबंधित होता है। अब हमारे आएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग। Here are a few objectives of a successful career planning process। यहाँ एक सफल करियर योजना प्रक्रिया के कुछ शीर्ष उद्देश्य हैं। इट हेल्प्स यू फाइंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये आपको कर्मचारियों की विशेषताओं को खोजने में मदद करता है। अंडरस्टैंड ईच एम्प्लॉयज़ यूनिकनेस एंड स्पेशलिटी। प्रत्येक कर्मचारी की विशिष्टता और विशेषता को समझें। गिव रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ फीलिंग। कर्मचारी की भावनाओं का सम्मान करें। ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट अ टैलेंटेड वर्कफोर्स टू द कंपनी। हमेशा कंपनी में एक प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करने का प्रयास करें। ट्रेन एम्प्लॉयज़ वेल टुवर्ड्स द टीम बिल्डिंग स्किल्स। टीम निर्माण कौशल की दिशा में कर्मचारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। Develop the better ways to manage emotions, conflicts and stress at work। तरीका विकसित करें काम पर भावनाओं, संघर्ष और तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए बेहतर करें। अब आता है इवैल्यूएटिंग द करियर गोल्स। Here one has to understand the potentiality, the personal interest, the deep observation of the job market and even the goal setting. Thus, these efforts will help an individual in preparation for the career। जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? या किसी को क्षमता, व्यक्तिगत हितों, नौकरी के बाजार
कि गहन अवलोकन और यहाँ तक कि लक्ष्य निर्धारण को समझना होगा। इस प्रकार के प्रयास करियर की तैयारी में एक व्यक्ति की मदद करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ अ करियर। करियर के प्रभावी चयन के लिए सुविचारित करने के लिए बिंदु, और ये 6 टाइप्स के हैं। जोग्राफिकल सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं भौगोलिक स्थिति, फैमिली साइकिल, परिवार चक्र, कॉम्पनसेशन ऑफ इनकम, आय की क्षतिपूर्ति, लेवल ऑफ प्रेशर, दबाव के स्तर या अवस्थाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब, नौकरी की विश्वसनीयता, एंड नंबर ऑफ आवर्स इन अ जॉब, यानी नौकरी में घंटों की संख्या। अब हम पढ़ेंगे इन डेप्थ जॉब स्टडी। अब इसका मतलब है गहराई से नौकरी का अध्ययन करना। जॉब का अध्ययन गहराई से किया जाता है जब तक आप अपने कोई विकल्प का निर्धारण नहीं करते हैं। आप सही फैसले जब तक आप नहीं लेते हैं तो आपको जो नौकरी का जो अध्ययन है वो बहुत ही गहराई से करना चाहिए। प्रथम जॉब जो होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण के साथ ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। प्रथम जॉब आसानी से प्राप्त हो जाता है, परंतु उच्च स्तर की जो पोजीशन होती है वो जो स्थापना प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम भीड़ से हटकर खड़ा होना हमें अत्यधिक हमारे लिए उस समय बहुत ही कठिन होता है। 7th इज करियर पाथ। करियर जो है वो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, यानी एक लंबी जीवन की लंबी प्रक्रिया है, और जीवन की एक लंबी हम इसे क्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है कि समस्त जो जॉब है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मीनिंग ऑफ जॉब। अब जॉब जो होता है वो क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में एक विशिष्ट स्थान जॉब कहलाता है। और जो जॉब है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनपेड जॉब, जिसे अवैतनिक नौकरी कहते हैं, और पेड जॉब होता है वो वैतनिक नौकरी कहलाता है। अनपेड जो जॉब होता है वो हमें सबसे पहले प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति के जो समस्त जॉब होते हैं वो 2 प्रकार से हमने इसको किया है। जो सर्वप्रथम क्या होता है, जो अनपेड होता है, जैसे डिज़ाइनर सर्वप्रथम क्या करता है, अपने परिवार तथा मित्रों के कपड़े डिज़ाइन करता है, और इसमें क्या होता है उसको कोई कुछ भी मतलब पे नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय वो एक खुशी खुशी करता है और सब उनसे उम्मीद भी लगा के रखते हैं कि ये हमारे लिए कार्य करेंगे। और जो पेड जॉब होते हैं वो वैतनिक नौकरियां होती हैं, और जिसमें हमें यानी कि वेतन हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर करियर पाथ प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और बहुत ही आवश्यक होती है। योजनाबद्ध करियर पाथ से एक दिशा प्राप्त होती है जो करियर लैडर का कार्य करती है, जो कि ऊपर की ओर बढ़ने वाला जॉब होता है। ये अनुभव, उत्तरदायित्व और वित्तीय भरपाई प्रतिफल के आधार पर होता है। नाउ प्लानिंग अ करियर इन फैशन। जब भी हम फैशन में जब प्लान आउट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, उसमें हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला होता है पर्सनल क्वालिटीज़ एंड स्किल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत गुण और कौशल। पर्सनल क्वालिटीज़ का होना बहुत ही आवश्यक होता है, और इनके आधार ये एक जॉब को प्राप्त करने में बहुत ही मददगार भी होता है। दूसरा होता है, सेकंड है हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन, जिसे हम कहते हैं स्वयं मूल्यांकन करना, स्वयं का विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। जैसे कि पैसा, हमें मनी कितना चाहिए, तो पैसा है या धन,
आत्मसंतुष्टि, सुरक्षा और प्रतिष्ठा, चुनौतियाँ कौन कौन सी आएंगी, देन चांसेस टू बी यानी जो सृजन के जो चांसेस हैं वो कितने प्राप्त होंगे, अनुभव और वातावरण किस प्रकार का होगा, और स्वतंत्रता आदि। ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपने स्वयं मूल्यांकन से ज्ञात करना होगा। देन थर्ड इज़ लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, यानी अवसरों के लिए हमें खोज करना। हमेशा हमें जो हमारे जितने भी हमें सुअवसर मिलते हैं उस पर हमें हमेशा एक अपनी दृष्टि गड़ाए रखना चाहिए कि जैसे न्यूज़पेपर्स में है और या फिर किसी जैसे कि जैसे कैंपस इंटरव्यूज़ भी होते हैं, या पार्ट टाइम एम्प्लॉयर जो हैं कुछ कई बार लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, कुछ मित्र जो होते हैं वो आपको कुछ जॉब से या आपको अवगत कराते रहते हैं कि भाई इस टाइप का कोई जॉब है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। आप लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपको लोग गाइड करते रहते हैं। जब आपको जॉब मिल जाता है तो आफ्टर यू हायर्ड, ग्रो बाय पार्टिसिपेटिंग इन सेमिनार्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस कोर्सेज, रीडिंग जर्नल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। और भाई क्या कहते हैं कि भाई जब आपको जॉब में आप आ जाते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करें, आप अपने आप को आगे की ओर बढ़ाने का भी प्रयास करें। जैसे आप किसी भी चीज़ में आप अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं तो उसमें आप सम्मिलित हुए, और कोई प्रोफेशनल संगठन होते हैं उनमें जाइए आप, और कुछ एडवांस कोर्सेस करिए, आगे की मतलब आगे और अपनी कौशल को बढ़ाने का प्रयास करें। और जो लेटेस्ट जर्नल्स होते हैं जो छपते हैं उनको रीड करें, और जो पब्लिकेशंस हैं, प्रकाशंस हैं, उन पे भी ध्यान दें। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम आगे प्रमोशंस चाहते हैं और उस प्रमोशन के लिए हम अन्य फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं या उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, पहला वाला जो हमारा जॉब होता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा कार्य करें, सो डोंट बर्न योर ब्रिजेस बिहाइंड यू। इसका मतलब है जब भी आप कभी कोई एक जॉब छोड़कर दूसरी फर्म में जाने का प्रयास करते हैं या जाते हैं, तो कभी भी आप जो जो जहाँ पे आप जॉब छोड़ के जाते हैं वहाँ पर आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं फर्म्स के साथ पुराने लोगों से बनाए रखें, और उनसे हमेशा एक अच्छा व्यवहार रखें। इससे ये होगा कि कभी आपको दोबारा उस जगह जाना पड़ी या वो आपको दोबारा बुलाने का प्रयास करे तो आप उस जगह पे जा सकते हैं और आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। थैंक यू।